Good morning class 11 students. We are doing linear inequalities and today we will see simultaneous solution of linear inequalities. एक या एक से अधिक जब linear inequalities आती है, how to solve them. For example, question number 5 of miscellaneous exercise. See that इसमें ऐसे दे रखा है 4 minus 3x upon minus 5, right? So this is the restriction. तो हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रांच पहले सॉल्व करेंगे एंड देन नेक्स्ट ब्रांच. तो इसमें पहले लिख लेते हैं -12 इज लेस देन 4 minus 3x upon minus 5 like this. ठीक है. अब now there are no variables in the denominator, so we can just transfer this. तो ये पूरा टर्म नेगेटिव वाला जो है and this is again -5, so we have to be very careful about the negative sign also. So this negative sign can be transferred to this, there is no problem. So we can write this as 4 plus 3x upon 5, right? और उसके बाद आप इसको जैसे ले आओ -12 minus 4 is less than 3x upon 5, -16 is less than 3x upon 5, right? Now we can multiply by plus 5, no problem, that is -80 less than 3x. Now we can write 3x is greater than -80, x is greater than -80 upon 3. One is this branch, okay? एक ब्रांच तो ये आया कि x greater than -80 upon 3. दूसरा ब्रांच में आता है अपन इसको 4 minus 3x upon minus 5 less than 2. फिर से बनाते हैं तो 4 3x plus 5 is less than 2. ठीक है. इस 4 को चले जाओ 3x upon 5 is less than 2 minus 4. 3x upon 5 is less than minus 2. यहाँ पर आया 3x is less than minus 10. So x is less than equal to minus 10 by 3. तो यहाँ पर आ रहा है x is greater than -80 by 3 and x is less than -10 by 3. So the answer is -80 by 3 से अधिक, ओपन ब्रैकेट है क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, to -10 by 3 क्लोज ब्रैकेट. So this is what we are getting as x belongs to this. This is how you solve simultaneous inequalities. So this is your question number miscellaneous exercise 6, question number 5. So those who if you are doing it, keep checking the answers also, right? Then you will understand it better. तो ये हमारा क्वेश्चन था 5th one, -80 by 3 -10 by 3 close. ठीक है. So this way you will have to solve the questions. We can solve question number 6 also like that. And then we have from 7 to 10. यहाँ पर आपको थोड़ा ग्राफिकल बनाना है, मतलब ऑन द ग्राफ पेपर नहीं करना, बिकॉज दे आर जस्ट इन वन वेरिएबल नॉट इन टू वेरिएबल. टू वेरिएबल वाले ग्राफ में करो, वन वेरिएबल वाले आप सिर्फ सिंपल अगर ग्राफिकल भी लिखा है तो सिंपल नोटबुक में आप कर सकते हैं. सो विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 हियर which is written graphically, but you don't have to solve graphically, you can solve it like this only. Okay, so what is that question, let me tell you. क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, सेम टाइप में है and we have to solve it on the number line. Graphically means number line here. So there are two inequalities and we have to solve them. The first one is 5 multiplied by 2x minus 7 minus 3. 2x plus 3 is less than equal to 0. Solve करते हैं 10x minus 35 minus 6x minus 9 less than equal to 0. कितना आ जाएगा 4x और यहाँ पर आ जाएगा minus 44 less than equal to 0. minus 44 उधर ले जा सकते हैं आप. तो ये आ जाएगा x is less than equal to 11. पहला पॉइंट ये आया. दूसरा पॉइंट आया आपका 2x plus 9 और 19 is less than 6x plus 47. तो ऐसे कर देते हैं इसको, 2x minus 6x is less than 47 minus 19 minus 4x is less than 47 minus 19, that is suppose it is 29. Okay, 29 plus 9 or 28, 9 minus 7, so let's make it 28. 28 plus 19 is definitely this. Now अगर आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. 4x is greater than equal to -28, माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने, इनइक्वालिटी साइन चेंज. x is greater than -28 by 4, x is greater than equal to -7. -7 से बड़ा है, तो ये वाला जो इनइक्वालिटी है इसका ग्राफ बनेगा और इसका ग्राफ बनेगा. ना इसका ग्राफ है इज लेस देन इक्वल टू, तो आपको ऐसे करना है 0 1 2 3 4 11 यहाँ लिख दो,
और 11 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर डॉट लगा करके ये पूरा रीजन आ रहा है लेस देन, मतलब ये इधर शो कर रहा है ये पूरा रीजन, राइट, विद दिस लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये जो आ रहा है इसके नीचे जस्ट नीचे बना सकते हैं फ्रॉम -7 ये रहा, -7 से इधर है, ठीक है। तो इनका जो कॉमन रीजन आ रहा है वो ये पार्ट आ रहा है, दिस पार्ट इज द कॉमन रीजन, दैट इज -7 इंक्लूडेड टू 11 इंक्लूडेड। This is the graphical solution on one variable, that is सिंपल नंबर लाइन पे बताने हैं आपको, शेड कर देना उस रीजन को, इसमें ये वाला रीजन शेड हो रहा है, इसमें ये वाला रीजन शेड हो रहा है, तो कॉमन रीजन आपको शेड करके बता देना, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस। yes, 2 number line, and then just on the third number line we are showing the common region, so maybe we can just make one more number line और यहाँ लिख सकते हैं -7 और यहाँ लिख सकते हैं 11 और उसको इस तरह से बता दीजिए, ठीक है। That is how you have to show it on the number line. So I am sure you can do this. Again, you can check the answer of question number 10, and then we can solve one word problem. Very interesting word problems are also here. And if you are able to solve the word problems, then that will be very good questions on word problems in this exercise also. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, -7 से 11। अब आते हैं एक क्वेश्चन आ रहा है वर्ड प्रॉब्लम, थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। Question number 13, I am reading it out. Yeah, question number 12. A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid. मतलब 8% boric acid का solution है, उसको 2% बनाना, 2% boric acid उसमें ऐड करना है, और रिजल्टेंट solution जो है वो 4% से मोर होना चाहिए और 6% से लेस। तो आपको ये बताना है कि अगर 640 लीटर्स ऑफ 8% सोल्यूशन है तो कितने लीटर्स 2% सोल्यूशन के ऐड किए जाएं ताकि हमारा रिजल्टेंट 4% से 6% के बीच में आ जाए। तो द क्वेश्चन इज, हमारे को 640 लीटर्स ऑफ 8% सोल्यूशन इज गिवन टू अस, ओके। 640 लीटर्स ऑफ 8% सोल्यूशन इज गिवन टू अस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। तो थोड़ा ध्यान से समझो, बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है आपको, ठीक है। मतलब ये मान लेते हैं 8% का मतलब होता है 8% इज एसिड और या एसिड एंड रिमेनिंग 92% इज वाटर, ऐसे मान के चले। तो 8% सोल्यूशन का मतलब हो गया 8% उसमें एसिड है और 90% वाटर है। अब 8% सोल्यूशन को उसमें मिक्स करना है क्या, 2% सोल्यूशन, रिजल्टेंट क्या होना चाहिए 4 से ज़्यादा और 6 से कम, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर आना चाहिए रिजल्टेंट हमें। तो अब ये बताना है हमको कि इसका जो रेंज होगा कि कितना, इसका 640 लीटर्स दे रखा है और इसका x लीटर्स ऐड करना है। अब x लीटर्स पता नहीं है तो वो x लीटर्स कितना हो कि इसका जो रिजल्टेंट बोरिक एसिड का कंसंट्रेशन है वो 4% से 6% के बीच में आ जाए, दैट इज द क्वेश्चन, ओके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज करो अज्यूम कर लिया हमने x लीटर ऐड कर दिया, राइट। तो एसिड कंटेंट कितना हो गया, 640 का तो हो गया हमारे पास 8%, प्लस जो x लीटर ऐड किया उसका आया 2%, दिस इज द एसिड कंटेंट, दिस शुड बी ग्रेटर देन 4%, यानी 4/100 ऑफ क्या, टोटल कितना हो गया, 640 में x लीटर ऐड किया ना, तो 640 प्लस x, ये टोटल हो गया। दिस शुड बी our total resultant should be greater than this, so 640 into 8/100 plus 2x upon 100, एक इक्वेशन तो ये बन गया। तो सॉल्व कर लेते हैं एक बार, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। तो 4 into 640 plus 4x is less than 640 into 8 plus 2x, और इधर आप ऐड करेंगे तो 2x is less than 640 into 8 minus 4 into 640, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, x आ जाएगा इज लेस देन, और आप इसमें से 640 कॉमन ले लो, 8 माइनस 4 होता है, अपॉन 2 किया इंटू 2 किया तो 1280 आ गया। तो x 1280 लीटर से कम होना चाहिए, ये बात यहाँ से समझ में आई, x 1280 लीटर से कम होना चाहिए। अब ये जो सोल्यूशन है ये 4% से कम होना चाहिए, तो लेट्स सी कि x का क्या रिस्ट्रिक्शन आता है। तो इसी को हम थोड़ा उलट देते हैं, 640 into 8/100 plus 2 into x by 100 is less than
640 प्लस x इंटू कितना परसेंटेज 6% से लेस, तो ये 100 कैंसिल कर दो और हमको मिलेगा 640 इंटू 8 माइनस 640 इंटू 6 इज लेस देन 6x माइनस 2x, समथिंग लाइक दिस। तो इस बार 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 6x माइनस 2x 4 होता है, तो यहाँ पर आप 640 कॉमन ले लो, 8 माइनस 6 आया तो आया 2 और यहाँ पर आया 4 इज लेस देन x, ये आ गया। इसको कैंसिल किया 2 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 320। सो x इज ग्रेटर देन 320 लीटर्स। तो जो भी आंसर आएगा, अगर आपको 4 to 6% चाहिए, तो जो आप बोरिक एसिड 2% सोल्यूशन ऐड कर रहे हो 8% में, तो आपको क्या करना है, जो x क्वांटिटी है 320 लीटर से ज़्यादा और 1280 लीटर से कम ऐड करनी चाहिए। This is how you solve this question. So you have to try the remaining questions, right? So keep trying the questions and we'll discuss the problem in the next class.